So we next go to the next speaker. So we have the next speaker, Ravi. So Ravi is going to explain us about how we design the software in a Figma, because for development of any software or application, we have to first design it into to give some structure, look and feel. After that, the development and starts. So Ravi is the who is responsible for designing the UI UX for the application and software. So Ravi, welcome you on this session, and please start presenting on the UI UX part. Okay, thank you, sir. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Ravi Kumar. I am a graphic designer and UX UI designer. I have more than 3 years experience in this field, and I work in Momo Software Infotech company as a graphic design and UX by UI designer. So today, what today we will discuss what is Figma and its usage. So let's get started. At first, I share the screen. So let me explain. At first, let me explain what is a Figma. Figma is a online design and prototyping tool. It's also a collaborative design tool for teams and designers. We can use Figma for UI by UX designs, graphics designs, wireframing, diagramming, brainstorming, and remote designs. What is the Figma tool used for? Figma design is used to create, share, and test design for website, mobile apps, and other digital products and experiences. It is a popular tool for designers, product managers, writers, and developers, and help anyone involved in the design process contribute, give feedback, and make better decision faster. So, how do we use Figma in design? There are basic first 8 points in use to Figma design. At first, set up your Figma account, then take a look around the Figma interface. This is a interface of Figma. And third, start a new design file. Now that you are found your way around, let's start making a stuff. Let's start a new project by clicking the menu button, uh, Figma logo in the top left corner, then selecting file and a new design file. Doing this should automatically create a new file with an empty canvas in a new tab on your browser. So this create a frame, mm, and then point 5, practice zooming in and zoom out, and practice using the hand tool to move around the canvas. 7, create a text layer. 8, create a rectangle and arrange the layer. Why is Figma used? Figma is a cloud-based design tool that is used to create and test apps and websites. While it provides similar functionality to other competitors such as Sketch and Adobe Activity, the ability for real-time team collaborate is a key differentiator. So today this session, I will discuss a landing page on Figma design. So I am going to Figma interface. So
This is a Figma interface, and right left panel. So you untitled at first, renaming, then landing page. हाँ हाँ, so this is a landing page for websites. Figma design, we are used to app design and website design. So it is comfortable for designers and developers. It helps to develop any software and websites. So at first, Figma design, I will work to as a design, which is very important and helpful for developer. So as a client requirement, we are designed to create for from Figma as a development. So continue in Hindi these topics. So हेलो हेलो टीम्स, ये इंटरफेस है फिग्मा का। और ये जो लेफ्ट साइड में है वो हम लोग का पैनल्स है। इसमें पेजेज हम लोग ऐड करते हैं, और ये सब जो है नीचे डाउन में ये सब टूल्स है जो इसके हिसाब से हम लोग कोई भी डिजाइन को बनाते हैं। उसका राइट साइड में ये पैनल जो लेआउट का होता है, इसमें से हम लोग कलर वगैरह यूज करते हैं। तो हम लोग एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। नेमिंग में हम लोग क्या बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसका पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। तो आज मैं ये सेशन में आप लोग को लैंडिंग पेज का बैनर बनाने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग इसमें नेमिंग करेंगे लैंडिंग पेज बैनर। एक्चुअली मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो लैंडिंग पेज जो होते हैं वो मतलब एक वेबसाइट का जो ऊपर टॉप टू बॉटम जो मतलब फुटर तक, इसको पूरे को हम लोग एक लैंडिंग पेज बोलते हैं। जिसमें से ये जो सेक्शन होता है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये बैनर्स होते हैं, हीरो बैनर्स, उसके पास कार्ड्स आते हैं, आइटम्स आते हैं, टेक्स्ट। ये हम लोग को पार्टिकुलर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ क्रिएट करेंगे एज बैनर्स से, हम लोग देखेंगे हीरो बैनर्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने मैंने एक लैंडिंग पेज का नाम रीनेमिंग किया। उसके बाद मैंने एक पेज बनाया। अब ये है टूल्स। ये टूल्स को ही यूज करके इसमें हम लोग बैनर का इंटरफेस बनाते हैं, जिसमें तो सबसे पहले हम लोग को मोबाइल के लिए बनाना है कि वेबसाइट के लिए बनाना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेम। तो पहले हम लोग फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। फ्रेम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे से ऑप्शन आ जाते हैं, मोबाइल फोन के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तो प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, अदर। उस पे तो हम लोग को जो बनाना है, आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो डेस्कटॉप के लिए। तो डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी उनके साइजेस दिए, मैक के लिए मैक, डेस्कटॉप, वायर फ्रेमिंग। तो ऐसे हम लोग डेस्कटॉप का ही साइज लेंगे। तो ये वेबसाइट वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज का जो मैंने बैनर बना रहा हूँ, तो मैंने एक साइज ले लिया जिसका विथ 14 1440 और हाइट है 1024। तो हाइट हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं, पर विथ जो स्टैटिक है वो स्टैटिक ही रहेगा। और हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप 1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसमें इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो हम लोग के लिए मतलब
ज्यादा प्रोजेक्ट्स अगर हो जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, तो हम लोग को सर्च करने में इजी हो, इसलिए लैंडिंग पेज। फ्रेंड्स से हम लोग ये लैंडिंग पेज बना लिए। लैंडिंग पेज का जो ये लेआउट है, लेआउट को मैंने क्रिएट किया। अब हम लोग को डिजाइन, इससे हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमको टेक्स्ट लगाना है, किधर इमेज लगाना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रिड। तो हम लोग ग्रिड इसमें एड ऑन करेंगे, और ग्रिड में हम लोग एड ऑन करेंगे इसमें कॉलन को। इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक कॉलन होता है, एक रो होता है। तो एज ए यूज डेस्कटॉप के लिए हम लोग 12 कॉलन यूज करते हैं। और मार्जिन और एज ए में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंट का मतलब होता है कि ये जो हम लोग का ग्रिड का जो कॉलम्स दिख रहे हैं, इसे हम लोग को 12 दिए तो हम लोग को यहाँ पे 12 कॉलम्स आएंगे। उसके बाद कलर, कलर इसका जो कलर है, ये कलर हम लोग अपने हिसाब से कम या तो फिर ज्यादा या फिर अदर कलर्स कुछ भी रख सकते हैं। तो इतने तक रखता हूँ। जो देखिए मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब होता है गैप। मार्जिन अगर मैं 35 अगर करता हूँ, तो ऐसे हम लोग का ये दोनों तरफ पे जो गैप दिखते हैं, इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन में इसका 50 कर लेता हूँ। अब होता है गटर। गटर ये दोनों के बीच का जो मतलब दो कॉलन के बीच के जो गैप होता है, उसको गटर बोलते हैं। तो गटर हम लोग 25 करेंगे, तो देखिए ये गटर थोड़ा सा ये बढ़ गया। अगर 30 करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ग्रेड का हम लोग का मेन कारण ये होता है कि इससे हम लोग को पता लगता है कि कितना सा में हम लोग को इमेज रखना है, कितने में टेक्स्ट रखना है। तो ये हम लोग को ये करता है, क्या बोलते हैं इसको, कि समझने में वो आसानी होती है एज ए ग्रेड में। देन तो ये हम लोग का ये है। तो अब लैंडिंग पेज में क्या होता है, लैंडिंग पेज में हम लोग सबसे पहले बनाते हैं हेडर। तो हेडर के लिए अगर हमको बनाना है, तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम लोग का टूल्स है। तो टूल्स में यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल होता है, लाइन होता है, एरो होता है, इलिप्स है, पॉलीगोनल है, स्टार है, और इमेज और वीडियो हम टैट यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। तो इस हेडर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे। अब ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल लेने के रेक्टेंगल ले लिए। इसके बाद इसमें हम लोग अगर चाहेंगे कलर डालना है, तो हम लोग यहाँ से कलर पिकअप कर सकते हैं। फील में जाके कोई भी कलर ले सकते हैं। ये कलर, ये कलर हम लोग ले लिए। अब ये अगर हम लोग इसको देख हटाना है, ग्रिड को, लेआउट ग्रिड को हटा के देखना है कि हम लोग को कैसा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाके इसका जो आइज होता है उसको हाइड कर देंगे, जिससे हमको ये दिखेगा। ये दिखा। उसके बाद फिर ऑन करेंगे, तो मेरा जो ग्रिड होता है, वो जो हाइट है, वो फिर से वो ऑन हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो राइट कॉर्नर में हम लोग जिस टाइप से हम सब लोगो डालते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पुट करेंगे एक लोगो। मैं एज ए टेक्स्ट ही अभी यूज कर दे रहा हूँ लोगो के में। हम लोग यहाँ पे कलर फॉन्ट जो भी लेते हैं, फॉन्ट्स का हम लोग यहाँ पे नाम नेम से हम लोग कोई भी फॉन्ट को ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग डाउनलोड भी करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जो मैं पॉपिंस यूज कर रहा हूँ फॉन्ट का, वो उन उसके बाद इसके जो फैमिली फॉन्ट्स का ये होते हैं, साइजेज होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जिससे हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं। मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक। एजे मैं सेमी बोल्ड ही रखता हूँ उसमें। यहाँ पे होता है कि साइजेज, साइज को अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो बड़े फॉन्ट साइज बढ़ेंगे। अगर कम लगा तो घटेंगे। तो मैं एज 32 या 32 लेता हूँ।
तो ये मेरा ये साइज है। अब लोगो, ये मैंने लोगो करके कॉर्नर में कर दिया। तो देखिए ये ग्रिड से हम लोग को क्या फायदा है वो मैं बता रहा हूँ। एडवांटेज जो हम लोग को मिलते हैं कि जो ये ग्रिड है, ग्रिड का ये जो गैप है और हम लोग का जो गैप, तो ये गैप का बाहर उसका ना जाए, जिससे हम लोग का डिजाइन जो बने वो अच्छा दिखे, सुटेबल दिखे और लाइन और अलाइनमेंट में दिखे। इसलिए हम लोग ये ग्रिड का यूज करते हैं। अब इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे हेडर फाइल में आते हैं, वो सब हम लोग बना लेंगे। जैसे होम, इसको डुप्लीकेट करके हम लोग कॉन्टेक्ट अबाउट अस सेक्शन हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। और ये लोगों के साथ इसका जो फॉन्ट है वो मैच कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉन्ट का साइज को चेंज करेंगे। जैसे अबाउट अस करके 25 कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस से हम लोग जूम जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की होता है, उससे करते हैं। ये हम लोग को ये जो ग्रेड है, ग्रेड से ही बनाना है। जैसे हम लोग का ये लिए तो इससे हमको कैपिंग पता चलता है। हम्म, उसके बाद हम लोग सबको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में हम लोग का ये जो होता है वो सेंटर अलाइनमेंट होता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर। हम लोग का डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एक साइन अप बटन चाहिए, तो साइन अप बटन के लिए हम लोग आइकन्स यूज कर सकते हैं या तो इमेज यूज कर सकते हैं। तो फिग्मा में एक टूल होता है, टूल्स में ऐसा चीज है कि जिसमें हम लोग प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग लाने के लिए सीधा फाइल पे जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम लोग का एक प्लगइन्स करके आता था। प्लगइन्स में हम लोग यहाँ पे भी जो कुछ भी डाउनलोड करके रखेंगे, ये सब ये इंटरनेट से मिल जाते हैं, हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये आइकन्स है, तो आइकन्स का क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग साइन इन का हम लोग को चाहिए, तो साइन इन का एक साइन इन है तो क्या प्रोफाइल लिख के प्रोफाइल्स में हम लोग आ सकते हैं। दिस इज साइन। अब ये जैसे ब्लैक में आ रहा है या कुछ कलर में हो, तो हम लोग एक पर्टिकुलर कलर्स भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो वो सेम कलर में सब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे व्हाइट करता हूँ कि मुझे व्हाइट ही चाहिए। मैंने यहाँ पे व्हाइट कर लिया और मैंने इसको चूज किया। इसको पहले हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ये वहाँ पे पुट ऑन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आ गया, इसको फिर मैंने शिफ्ट और एरो बटन से इसको मैंने राइट साइड किया। और इसका हाइट और विड्थ अभी 100x100 दिखा रहा है। इसमें हम लोग कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो डायमेंशन होता है, इसके अगर हमको छोटा या बड़ा चाहिए तो हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फिर एक उसके उसके बगल में एक आइकन दिख रहा होगा, अगर इसको हम लोग इसको चेक करेंगे तो हम लोग अगर 50 करेंगे तो दोनों में एक साथ ही होगा। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग अनचेक करके रखेंगे तो एक में अगर विड्थ बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक में ही विड्थ बढ़ेगा, हाइट जैसा का वैसा ही रहेगा। बट अगर ये चेक रहेगा तो हम लोग एक साथ दोनों का ही काम कर सकते हैं। तो वो हमेशा चेक रखेंगे। इसको भी अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार वो चेक करके किया था तो वो 50% कम हो जा रहा था। ये हो गया। तो ये मेरा प्रोफाइल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये तो होम बटन खत्म। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक बार देखते हैं लेआउट को हटा के तो ये दिख किस रहा है हम लोग का, वो हिसाब से हम लोग कलर की वगैरह से यहाँ से ये वाइट है, ये सब ब्लैक है। अगर मैं इसको वाइट करके देखता हूँ, ये अच्छा दिख रहा है। इन लोग का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक साथ भी सेलेक्ट करके अगर करेंगे तो सबका सेलेक्ट करके करने से भी चेंज हो सकता है। और ये हम लोग अगर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है तो हम लोग रेगुलर से इसको हम लोग सेमी बोल्ड में या मीडियम में कुछ भी कर सकते हैं। तो थिंक हम लोग मीडियम रखते हैं, जो कि हम लोग का थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये हम लोग का हेडर फाइल एज ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बनाना बैनर का जो सेक्शन बनाना था, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल यूज करने के में एक पहले हम लोग रेक्टेंगल लेंगे जो इनके साइज का हो। साइज मेंटेन करके हम लोग एक रेक्टेंगल मैंने बनाया। आफ्टर दैट इसका अगर हम लोग को कलर चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पहले अगर बनाते हैं वेबसाइट वगैरह तो कलर पैलेट सेलेक्ट रखते हैं। लेकिन एज ए ट्यूटोरियल्स पर्पस ये अभी हम लोग का चल रहा है एज ए सेशन, तो मैं ऐसे ही इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ। एज ए हम लोग कोई भी कलर ले लेंगे। एज ए ब्लू का अभी है तो ब्लू का कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत डार्क ब्लू ले लेता हूँ और लाइट ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करना है, जो हम लोग को इस टाइप से दिखे। जो मेरा ये जो लैंडिंग पेज है इस टाइप से हम लोग को बनाना है, या तो अच्छा लगे दिखे इस टाइप का मैं ये बना रहा हूँ। तो हम लोग को टेक्स्ट और इमेज किस टाइप से अगर मतलब ऐसे अगर हम लोग को नहीं पता चलता है तो इसलिए हम लोग ग्रिड का यूज करेंगे। मतलब अगर हम लोग इसमें टेक्स्ट अगर डालेंगे तो उसका अलाइनमेंट या इमेज का जो मतलब अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं बैठता है। तो इसी के कारण हम लोग जब ग्रिड का यूज करते हैं, हाँ, और एक कलर्स में क्या होता है कि आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट भी यहाँ पे हम लोग का जो साइन दिया हुआ रहता है इसमें ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में आप दो कलर को के साथ अभी ले सकते हैं। एक कलर जैसे ये हो गया, सेकंड कलर आप थोड़ा डार्क ले लो। तो हम लोग उसको एक सॉलिड कलर बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जो
सिंगल कलर रहता है वो सॉलिड कलर रहता है, जिसमें दो या दो से अधिक कलर होता है वो ग्रेडियंट होते हैं। तो हम लोग जैसा मन करे, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा ग्रेडियंट को ही यूज कर लेता हूँ और डार्क लेता हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था ग्रेड, अब जैसे ये मेरा ये ग्रेड हो गया, तो अब ग्रेड का सेक्शन में हम लोग को लगाना कहाँ पे है कि टेक्स्ट कहाँ पे मैं रखूँ और इमेजेस कहाँ पे रखूँ जो हम लोग को सूटेबल रहेगा। और इसमें मैंने एक ऐड जैसे किया है ये बटन्स, वो बटन्स भी मैं ऐड करके दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग जो कुछ भी दो तरह से टेक्स्ट, अगर कोई क्लाइंट में अगर हम लोग टेक्स्ट नहीं मिला हुआ है, कंटेंट नहीं मिला हुआ है, तो हम लोग लोरियम इप्सम का यूज कर सकते हैं एक बार, जिसपे ये एक कंटेंट के लिए होता है जो डेमो टेक्स्ट देता है, इसका यूज करके हम लोग कंटेंट यूज कर सकते हैं फर्स्ट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग एज ए टेक्स्ट टूल को क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। अब हम लोग का जैसे ये लोगो है, लोगो का लेयर इतना यहाँ पे है, दो दो ग्रिड के बीच में हम लोग का ये लोगो है, तो लोगो से हम लोग को जस्ट थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे रखेंगे। और इसमें हम लोग साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कंटेंट देखना कि आपका कितना वैल्यूएबल कंटेंट है, कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है। हम लोग एक यहाँ पे नीचे ले लेते हैं और इसी को अगर हम लोग कॉपी करके यहाँ पे बोल्ड करके हम लोग टेक्स्ट करके हम लोग कुछ एक हायर डेवलपर मैं कुछ एक बड़ा ये हम लोग हाईलाइट टेक्स्ट और जो मतलब जो हम लोग बताना चाहते हैं वो हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसको बड़ा रखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट रखेंगे, इसका भी साइज सेम बोल्ड करके 25 कर 22 रखता हूँ। ये यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा अब ये अब ये तीन जो टेक्स्ट जो मैंने अलग अलग डिवाइड किया है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके एलाइन अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल स्पेसिंग। तो हम लोग को वर्टिकल करना है, तो वर्टिकल के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग करेंगे। तो ये अपना वो स्पेस मतलब ले लेता है। अब इतना होने के बाद हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग का ये जो डिजाइन होता है उसमें वो कैसे दिख रहा है। तो हम लोग को ये दिख रहा है जब ब्लैक है, इसके साथ अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसका कलर को चेंज करके भी देखेंगे। जैसे ये कलर है तो कलर को हम लोग व्हाइट करके देखेंगे। एज ए ब्लैक ही थोड़ा ठीक दिख रहा है तो ब्लैक ही रखेंगे। और अगर इसका हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम लोग और दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसा ठीक लगे हम लोग वैसा यूज करेंगे अकॉर्डिंग कलर प्लेट के। तो अभी के लिए ऐसा ही व्हाइट रहने देता हूं।
ये होने के बाद हम लोग एक बटन बनाएंगे जो ये इसमें जो हम लोग ऐड किए हुए हैं, तो उस टाइप का एक बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए हम लोग फिर से रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। और रेक्टेंगल, और ये जो वन, ये जो ग्रिड का जो कॉलन, ये कॉलन में ही मैंने सब टेक्स्ट को रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ही इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करूंगा, और जहाँ पे इसका एंडिंग है इन लोग टेक्स्ट का, वहां तक ही लूंगा ताकि उसमें प्रॉपर दिखे और सुंदरता इसका जो है वो घटे नहीं। और इससे हम लोग इसका यहाँ पे होता है एप्रियंस, एप्रियंस में इनका कॉर्नर को हम लोग राउंड और ये कर सकते हैं, या तो फिर डबल डबल क्लिक करेंगे तो भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस डिटेल्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग चाहे तो एक एक करके एक कॉर्नर को, दो कॉर्नर को, जितना भी है उतना बढ़ा। जैसे अगर हमको 70 ये 13 रखना है, तो मैं इसी को कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ, तो हर कॉर्नर मेरा 13 का हो जाएगा। ये मेरा पूरा कॉर्नर हो गया। अब मैं इसमें कलर ऐड कर देता हूँ, डार्क कलर्स। अब अगर हम लोग को इसके बाद अगर इसमें स्ट्रोक्स अगर हम लोग लगाते हैं, ये मेरा डिजाइन होने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रोक्स पे आते हैं। स्ट्रोक में हम लोग कलर भी चेंज करके हम लोग वाइट वाइट रखते हैं। और ये इनसाइड है, इनका हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर इसको हम आउटसाइड कर देंगे तो इसका साइज हम लोग आउटसाइड की तरफ से जाएगा। और ये सेंटर है, तो हम लोग एज ए सेंटर रखेंगे, पर इतना नहीं, हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। हम्म। अब यहाँ इसके ऊपर हम लोग जैसे टेक्स्ट रखेंगे, टेक्स्ट में कुछ भी लिखते हैं। मैं कुछ एक ऐड कर देता हूँ, जैसे इसके ये ऊपर, ये मेरा ज्वाइन नाउ का बटन आ गया। इसका हम लोग टेक्स्ट का साइज कम कर, तो ये मेरा ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं ग्रिड हटा के देखता हूँ, मतलब रिमूव करके कि हम लोग को दिख कैसे रहा। तो हम लोग को ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा छोटा ज्यादा दिख, जो मतलब विजुअल विजुअल भी नहीं रहा, पढ़ने में भी नहीं आ रहा। तो इसका हम लोग साइज थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। पहले एज ए डिजाइन जब हम लोग करते हैं, तो ये सब फॉन्ट वगैरह और जो कलर का रहता है सबका साइजेज मेंशन रहता है, क्योंकि अलग अलग साइज का फॉन्ट अगर रहेगा तो वो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है या दिखेगा नहीं। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को फॉन्ट कौन सा लेना है और कितना फॉन्ट, मतलब कौन सा फॉन्ट का साइज कहाँ पे यूज करना है, ये हम लोग पहले डिसाइड करके रख लेंगे। तो ये हम लोग का अभी के लिए ठीक है। नाउ ये टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इमेज यूज करूंगा। तो इमेज के लिए आप कहीं से भी, आप इंटरनेट से भी ले लीजिए, जैसे कुछ भी हायर डेवलपर का भी हम लोग इमेज, हायर डेवलपर इमेजेज, इमेजेज यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से एक डेवलपर का ही सेव कर लेते हैं इमेज।
यही हो। इसको हम लोग डायरेक्ट फिग्मा में भी ले जा सकते हैं डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे आ गया, पर इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड भी है और ये तो इमेज ही अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो ऐसे हम लोग का प्लगइन्स में रिमूव बीजी होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो भी आप साइड रिमूव बीजी का भी यूज करके यहाँ से भी ऐसे हम लोग डायरेक्ट इमेज को अपना सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। हेलो, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग पुट इमेज करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्लिप करने का ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स कर सकते हैं। अगर जैसे इस टाइप से था, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग को फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से वो ये उसका जो साइड मूवमेंट होते हैं वो वन टू अनदर प्लेस मतलब जा सकता है। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लगाएं, लोगो लगाएं, ये सब चीज अगर आप लोग को जो कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगे या तो फिर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लैंडिंग पेज था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको रन कैसे करते हैं। या तो हम लोग का यहाँ पे एक बटन होता है जिसको प्ले बटन बोलते हैं। इसको हम लोग प्ले करेंगे तो हम लोग का डिजाइन कैसे एज ए डेस्कटॉप या मोबाइल ऐप का अगर बनाते हैं डिजाइन, तो मोबाइल ऐप में कैसे दिखेगा वो इससे हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग का डिजाइन ओ ये हमारा डिजाइन ऐसे दिखेगा एज ए डेस्कटॉप में। सो ये मेरा सेशन, आज का सेशन मेरा ये लैंडिंग पेज का बैनर बनाने के लिए था। सो मैंने आप लोग को ये बताया एज ए फिग्मा डिजाइन में कैसे बनाते हैं। तो आप लोग को होपफुल अच्छा लगा हो। थैंक यू। Thank you very much, Ravi. You explained us the Figma design of a banner for the landing page. Yes. So thank you very much. You explained us detail. Okay.